linear equation two variable have only two solutions. Okay, so these are the differences between the solution of each and every concept. So we are moving our next question, question number first, that is, in this question which of the following option is true and why? So student, this is a multiple choice question as well as reason based question, that is you have to, first of all you have to write the correct answer and what is the reason behind the correct answer. So this equation is, the equation of this question is y is equal to 3x plus 5. So student, this is the linear equation in two variable. So you are all know that in a linear equation in two variable has unique solution. No, unique solution is for linear equation in one variable. Only two solution. This option is correct when if a pair of linear equation two variable have given. Okay, and this option, that is infinitely many solution, is correct. This option is third one is correct. So we can write the solution that in y is equal to x plus y is equal to 3x plus 5 has infinitely many solutions. This is the answer. And we all know that if why we can say that this is the in linear equation two variable have infinitely many solution, because you all know that for different value of x there are different value of y will come, and vice versa means in that case of, if we put the value of y, then we will get the different value of x also. So that's why we can say that in linear equation two variable has infinitely many solution. So we can write here, because for different value of x, we will get different value of y and vice versa. Okay, for different value of x we will get different value of y. This is the answer, this is the reason, and in answer sheet the answer is given that for every value of x there is a corresponding value of y and vice versa. So this option is also correct and this is also correct. So we are moving on next question, question number 2, that write 4 solutions for each of the following equations. So students, we all know that in a linear equation in two variable have infinitely many solutions. So in these type of question you have to find only 4 or 5 solutions, because there is no limit. So these type of question you have to solve. So the first question is 2x plus y is equal to 7. So today you are free if you want to put the value of x by your own assumption, that then you will get the value of y, and if you want to put the value of y by your own assumption, that you will get the value of x, and you may also assume that every value of x, but generally we will put the least number of value of
एनी वेरिएबल। बच्चों x और y की वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। और हम फ्री हैं टोटली, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। लेकिन जनरली x या y की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल अगर दिया होगा तो उस जनरली हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। लीस्ट नंबर का मतलब जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। अब आप चाहे तो x = 100 भी ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 5,000, 10,000, 1 करोड़। बट ये आपके जो है टाइम कंज्यूमिंग एजम्पशन होगा। इसलिए जनरली जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो जनरली हमेशा लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए, -1, 0, 1, 2 etc. ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, हियर we will put the value of x, then we will get value of y. If x is equal to -1, then we will put the value of x, that is 2 into -1 plus y is equal to 7, that is -2 plus y is equal to 7, and y is equal to 7 plus 2, that is 9. Y is equal to 9. So for value of x is equal to -1, we will get the value of y is equal to 9. In the same way, if we put the value of 0, if we will put the value of 0, then we get 2 into 0 plus y is equal to 7. So this term is 0. So we can write y is equal to 7. Okay. So for value of 0, then we will get the value of 7. Students, you are free, because if you want to put the value of y, then we will get the value of x. बच्चों अगर आप y की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो आप x की वैल्यू अलग मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई जो है रूल नहीं है कि पहले x की वैल्यू पुट करें, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, ये इसमें टोटली आप फ्री हैं। बट ये ध्यान रखना होगा कि हमें लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा और वैल्यू जो है सोल्यूशन थोड़ा जल्दी मिलेगा। x is equal to 1, then 2 into 1 plus y is equal to 7, that is 2 plus y is equal to 7, y is equal to 7 minus 2, so we can write y is equal to 5. Okay, and the fourth solution निकालना है हमें, फोर्थ सोल्यूशन। तो डी इसका पार्ट हम निकालने जा रहे हैं। देखिए, इफ x is equal to 2, then we can write 2 into 2। बच्चों 2x का मतलब होता है 2 into x, और x की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है 2, ठीक है। तो 2 into 2 plus y is equal to 7, तो 2 to the 4 plus y is equal to 7, so we can write y is equal to 7 minus 4, that is y is equal to 3. So these are all the 4 solution of this equation, 2x plus y is equal to 7. So before moving on next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving our second part of this second question. So student, I want to say something about the solution of this previous equation, that is y 2x plus y is equal to 7. Student, your answer may be possible that your answer will not match, may be possible the answer sheet, because if any equation has infinitely many solutions, then there is a chance to similar to the answer, may be possible that similar to the answer your answer sheet. बच्चों क्या होता है कि जब
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो कभी कभी होता है कि आपके आंसर मैच हो सकते हैं, कभी कभी होता है आंसर मैच नहीं हो सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप x की वैल्यू कुछ भी मानेंगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी तो वो जो आंसर शीट में वैल्यू पुट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात? x की वैल्यू जो आंसर शीट ने एज्यूम किया होगा तो उनके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा, आपने जो एज्यूम किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें कोई डाउट जो है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपका भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, और बुक का आंसर भी सही माना जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने जो वैल्यू पुट किया है x के लिए वो y के लिए ट्रू है, आपने जो x के लिए वैल्यू पुट किया y के लिए ट्रू है, तो सभी आंसर सही माने जाएंगे। सभी के आंसर डिफरेंट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी के आंसर एक जैसे होंगे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि जब भी किसी इक्वेशन के इनफाइनाइटली वर्ड जो आ जाता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, कहीं से भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बस ये है कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उसके लिए दूसरी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 के लिए वो वैल्यू y की वैल्यू 0 के लिए सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, आंसर आपका मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए हमने अभी आंसर चेक किया है तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने -1 नहीं पुट किया है, ठीक है, इन्होंने 0 पुट किया तो 7 मिल गया, 1 पुट किया 5 मिल गया, 2 पुट किया 3 मिल गया, 4 पुट किया -1 मिल गया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये आंसर है, हमारे अकॉर्डिंग वो आंसर था, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम जैसे सेकंड क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो बच्चों पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, पाई को एज इट इज पाई ही रखना है, क्योंकि पाई जो होता है कि इरेशनल नंबर होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड पाई की जो वैल्यू होती है, why we can say that pi is an irrational number, because the decimal expression of pi has non-terminating and non-repeating, okay, so we can say that this the pi is an irrational number and pi की जो वैल्यू होती है 3.14 and something होती है, so this is the actual value of pi and we can, so for this value of pi we can say that pi is an irrational number because the decimal expansion of pi has non-terminating and non-repeating, and जो pi की वैल्यू 22/7 होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए इसका यूज करते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है, कैंसिल वाला टर्म हमें यूज करना होता है, तो हम ये वैल्यू कर देते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है, इसीलिए वैल्यू बनाई गई है। लेकिन ये सब वैल्यू आप इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पाई को जो है कांस्टेंट माना, कोएफिशिएंट माना गया है, मींस रियल नंबर माना गया है। पाई रियल नंबर है, क्यों पता है आप सभी को? क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर, और रियल नंबर में 2 नंबर मिलते हैं, आपको सभी को पता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसलिए पाई को एक रियल नंबर माना गया, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में अगर कोएफिशिएंट, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर पाई यूज किया गया। पाई इज अ रियल नंबर बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो नाउ starting the 4 solution one by one, like if x is equal to -1 then पाई x लिखा हुआ बच्चों, पाई x का मतलब पाई मल्टीप्लाई x। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1, समझ में आ रहा है? पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, तो -1 पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा बच्चों -पाई प्लस y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू पाई इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया 9 + पाई, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड सोल्यूशन क्या हो सकता है, जिसमें हम 0 पुट कर दें, ठीक है, तो देन पाई इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई x लिखा हुआ है, तो पाई इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 9, तो ये 0 हो जाएगा, देन y इक्वल टू 9, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन। नाउ इसका थर्ड सोल्यूशन हो सकता है, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, if x is equal to 1 then pi into 1 plus y is equal to 9,
सो वी कैन राइट पाई प्लस वाई, पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, तो जो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें वही सेम रिजल्ट मिलता है। देन y इक्वल टू पाई इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इफ यू पुट x इक्वल टू 2 देन पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, सो वी कैन राइट 2 पाई, पाई इंटू 2 का मतलब 2 पाई, ठीक है, 9, then y equal to 9 minus 2 pi. This is the another solution. Okay, so I hope you are understand the concept. It may be possible that your answers may be match or not. देखिए 1 रखा है इन्होंने, पहले 1 रख दिया, ठीक है, तो 9 माइनस 5 आया, 0 रखा तो 9 आया, ठीक है, -1 रखा तो 9 प्लस 5 आया, और इन्होंने कुछ दूसरा रखा होगा, 9 अपान पाई रखा होगा तो 0 आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपने अगर 2 रख दिया है तो भी आंसर सही है, समझ में आ रहा है। 2 के लिए आंसर यही होगा, चाहे मतलब जो आप वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए ये आंसर ट्रू होगा, ट्रू होना चाहिए, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि आंसर मैच हो भी सकता है, लेकिन 3 आंसर मैच हो रहे हैं, एक आंसर नहीं मैच हो रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 2 रखा तो आपको ये आंसर मिला, इन्होंने 9 अपान पाई रखा था तो उनको आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। सो बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी or take screenshot. Now students, we are moving another type of question number 3, that this is the reverse opposite question of question number 2. Why we can say that this question is opposite of question number 2? Because in question number 2 you have to find the 4 solution, okay, and in this question you have to check that these are the solution of the given equation। बच्चों इसमें करना क्या है कि जो solution दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 पार्ट में इन्होंने solution निकाल दिया है, ठीक है। अब इसमें 1 by 1 चेक करना है कि क्या ये solution सभी इसके इस इक्वेशन के हैं। तो इसका बहुत ही इजी मेथड है, आप x और y ये समझ लीजिए, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है y, 2y की वैल्यू है, 0x की वैल्यू है, 2 जो है y की वैल्यू है, और यही दोनों वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसमें, यही दोनों सोल्यूशन हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर हमें रिजल्ट 4 मिलता है, अगर हमें रिजल्ट 4 मिलता है तो वो सोल्यूशन माना जाएगा। अगर 4 रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, पुटिंग x equal to 0 and y equal to 2 in given equation, we get, देखिए LHS इसमें रखेंगे हम, x माइनस 2y दिया है ना, तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 2 है, तो 0 माइनस 4 क्या है, 0 माइनस 4 होगा, आपने पढ़ा होगा इंटीजर में। तो ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू RHS, या हम ये भी लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 4। देखिए यहाँ -4 है और 4 के इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट 0, 2 is not the solution of given equation, okay, very easy question. Now I am solving question number 4, that is under root 2 comma 4 under root 2. So all the remaining part, there are total 5 parts in this. I am solving question number 2 and 2 parts I have solved. So you have to try to solve 3 parts by yourself, okay, for practice purpose. So solution is
putting x equal to under root 2 and y equal to 4 under root 2 in given equation, we get, so put the value of x minus 2y means x यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2 है और y क्या है 4 अंडर रूट 2 है। ठीक है, देखिए बच्चों अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसमें अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 8 कितना होता है -7 होता है। 1 माइनस 8 -7 होता है, इंटीजर में आपने पढ़ा होगा। तो -7 अंडर रूट 2 आ गया। अब ये 4 के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, यही लाइन लिख सकते हैं, ये वाली जो अभी आपने लिखा था। देन वी कैन से दैट under root 2 comma 4 under root 2 is not the solution of given equation। ओके बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, देखिए then we can say that 2 under root 2 4 under root 2 under root 2 comma 4 under root 2 is not the solution of given equation because it is not equal to 4। okay, now before moving on next question, pause the video to note it down in your copy and take a screenshot। now students, we are moving the last question and very interesting question as well as important question, that you have to find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation this। so student, in this equation it is clear that 2 and 1 is a solution। बच्चों इसमें कह रहा है कि ये 2 और 1 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 ये दोनों सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। पहले से ऑलरेडी जो है क्लियर है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर k जो है वेरिएबल नहीं है, k इज द कांस्टेंट, तभी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का जब जनरल फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर c क्या होता है, c को हम कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट कुछ भी आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k से इंडिकेट किया गया है, तो जब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू ये है। ठीक है, नाउ तो इसमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू है हमें पता है कि इसके सोल्यूशन है, हमें पता है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो we can easily put the value of this variable in this given equation। given equation 2x plus 3y is equal to k and x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of above equation। okay, so इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x plus 3y minus k is equal to 0 लिख सकते हैं। k को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा। एंड गिवन आल्सो यहाँ लिख सकते हैं एंड also given that x equal to y equal to 1 is the solution of above equation, then putting the value of x equal to 2 and y equal to 1 in given equation, we get
तो यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2x plus 3y minus k is equal to 0, that is 2x का मतलब बच्चों 2x का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ 2 into x होता है और 3y का मतलब 3 into y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर we put the value of x in the place of x is 2 and y 1, y यहाँ पर क्या है 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 2 2 जा 4 plus 3 1 जा 3 minus k is equal to 0, 4 3 plus 3 is equal to 7, then minus k is equal to 7 इधर जाएगा तो बच्चों ये 7 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। दिस इज द आंसर एंड I hope you are all understand the concept of today's concept, and in this exercise the remaining question you have to solve by yourself, try to solve by yourself, and before watching all these steps very carefully, okay. So in next video I will discuss the another concept of this chapter. So thank you very much for being with us.